Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. Hello I think everyone, we we are should live proceed. from yeah, Yes, of yes. course. We are live from both pages of Access and MLSE KFUEIT. So this session is all about U grade. आपको सब questions के answers मिल जाएंगे कि U grade actually है क्या, उसके लिए आप apply कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर basis of selection क्या होती है. तो हमारे पास आज 3 guests हैं, अब्दुर्रहमान, उस्मान and Mahnur. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. आवाज आ रही है मेरी? Yes, आपकी आवाज आ रही है. Okay. वालेकुम अस्सलाम. Okay, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम Yes, Mr. Abdul okay. Rahman from yes, we should proceed now. Our first Mrs. speaker Abdul is Rahman. Yes, please. Muhammad Usman, who is currently doing BS Commerce, majoring in accounting from Hilly College of Commerce from PU Lahore. He is also alumni of U Grade Fall 2019. Moreover, he is also a YouTuber and source of guidance and inspiration for many students throughout the Pakistan. Our second speaker is Ms. Mahnur Idris, who is studying nutrition dietetics from UWAS, Lahore. Currently, she is dietetic intern at Sir Gangaram Hospital, Lahore. She is also alumni of U Grade for 2019. We are really glad to have these two alumni with us. Our next speaker is Abdurrahman, student of Islamic University, Islamabad. Currently studying BS Islamic Sciences with the specialization of comparative religions. He is also the head of class representative at the Faculty of Islamic Studies at university. Okay, so we will start our program with the question, what is U grade? Okay, Abdurrahman, I want you to elaborate what is U grade actually to the audience who don't know. Yes. Thank you, Shazia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I'm very thankful for this platform, especially Ms. Shazia to organize this great session for the student of KFUT, and also thankful to the platform Microsoft Learn Student Ambassador KFUT. So, U grade. U grade stands for, you can say, the Global Undergraduate Exchange Program. ये एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है यूएसए के अंदर, जिसमें आपने एक सेमेस्टर के लिए यूएस जाना है. वहाँ पे नॉन डिग्री एकेडमिक स्टडी आपको करने का मौका मिलता है, और उसके साथ साथ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने कंट्री, अपने प्रोविंस, अपने एरिया के फॉर्म और ब्यूटीफुल कल्चर को यूएस के साथ शेयर करें, और यूएसए में जाके आप वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करें. उसके साथ साथ प्लस आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी एकेडमिक्स में एक्सेल करने के लिए, क्रिटिकल प्रोफेशनल स्किल्स को सीखने के लिए, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को एनहेंस और पॉलिश करने का एक बहुत ही एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म आपको मिलता है. और उसके साथ साथ आपको यू ग्रेड में ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप किस तरह से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, प्लेटफॉर्म्स पे. उसके अलावा मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी पर्सनल जो है पर्सनैलिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं. आपको मुख्तलिफ जो दूसरे आइडियाज़ हैं, ऑलमोस्ट पाकिस्तान से जो ड्रीम सेलेक्ट होती है, उनके आइडियाज़ जो हैं आपस में जो है शेयर्स होते हैं, और बहुत सी जो माइंड सेट्स हैं उसके होराइजन्स आपको मिलते हैं मुख्तलिफ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू ग्रेड, और ये फुली फंडेड एक स्कॉलरशिप है यूएसईएफपी की तरफ से.
इसके स्पॉन्सर्ड हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इसको स्पॉन्सर करते हैं, फंडेड बाय जो है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। और इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी वो वर्ल्ड लर्निंग है, वर्ल्ड लर्निंग यूएस की तरफ से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आईआरएक्स इसको सपोर्ट करता है और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है यू ग्रेड की उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यू ग्रेड की एलिजिबिलिटी है उसमें you must be a Pakistani, means it is you grade Pakistan. So first of all, you must be a student or you must be a national holder of Pakistan. Then there is age restriction. 25 year age restriction है, आप 25 years के हो या उससे कम होनी चाहिए आपकी एज। देन जो थर्ड एलिजिबिलिटी है वो ये कि आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो हमारा 16 इयर्स एजुकेशन का एक कैलेंडर है उसमें आप हों, और आप फाइनल ईयर में नहीं होने चाहिए अपनी डिग्री के, और ना ही फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। आप अगर फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आप जो है वो 14th ईयर में या 15th ईयर मींस थर्ड सेमेस्टर टू सिक्स्थ सेमेस्टर में होने चाहिए करेंटली। या अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम लाइक एमबीबीएस कर रहे हैं या आर्किटेक्चर कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक और साल भी मिल जाता है, यानी कि 14, 15 और 16 ईयर्स मींस थर्ड सेमेस्टर टू एट्थ सेमेस्टर। देन जो है आपके पास जो एलिजिबिलिटी में चीज़ आती है कि आपको अपना मोस्ट रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके पास होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके मोस्ट रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट मैं आता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट्स यू ग्रेड में यानी किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन, नो एनी क्राइटेरिया कि आप इस डिपार्टमेंट में होने चाहिए या इस डिपार्टमेंट में नहीं होने चाहिए। ऑल डिपार्टमेंट्स जिस मर्जी आप डिपार्टमेंट के हैं, साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज है, एमबीबीएस व्हाटएवर, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप एक्सपोयर आपको पसंद है, आप जो है वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू आर हियर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर ग्रेड। लास्ट जो क्वेश्चन है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो योर ग्रेड के लिए वी कैन से रियली अप्रिशिएटेड, those students were really appreciated to apply। तो उसके लिए सिंपली दो तीन चीज़ें हैं कि जो रिमोट एरियाज हैं हमारे पाकिस्तान के, और वी कैन से द अंडर डेवलपिंग एरियाज लाइक साउथ पंजाब, जो कैफ्यूट है हमारे साउथ पंजाब में आता है। मैं भी बेसिकली साउथ पंजाब रिंगा खान से हूँ, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को एक प्रिविलेज दिया जाता है क्योंकि हमारे इन इलाकों में लाइक साउथ पंजाब हो गया, केपी, फाटा, इसके अलावा बलूचिस्तान के काफ़ी एरियाज, यहाँ पे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ कम हैं, तो इसलिए इनको अप्रिशिएट किया जाता है। और सेकेंडली फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज किया जाता है अप्लाई करने के लिए, और ऑलमोस्ट हर कोहॉर्ट में, हर सेशन, हर बैच में ऑलमोस्ट मोर देन 50% फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोहॉर्ट का, इस बैच का हिस्सा होती हैं। और लास्ट डिसेबल स्टूडेंट्स जो हैं दे आर ऑल्सो एनकरेज एंड टू अप्लाई, और उनको भी जो है वो स्पेशल कंसिडरेशन दी जाती है। तो ये तीन चार जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें आपको आपकी एप्लीकेशन और आपको ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाती है इन मामले में। दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। नाउ ओवर टू शिजा, प्लीज प्रोसीड। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका प्रोसीजर बता देती हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अप्लाई करने से पहले पूछ रहे होते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे और आगे प्रोसीजर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप तो ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करें। अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं देन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है अबाउट इंटरव्यू। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो देन आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, लाइक हमारी दफ़ा आई थिंक सो 16,000 प्लस पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेंट्स थे एंड 250 का इंटरव्यू हुआ था। तो आपने देन इंटरव्यू की टेंशन लेनी है। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, देन आपका टॉफल होता है,
देन कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, एंड देन आपका डिपार्चर होता है। तकरीबन 1 साल तक लग जाता है आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो नेक्स्ट कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, लाइक जीपीए। अक्सर लोग पूछते हैं कि जीपीए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो जीपीए इम्पोर्टेंट है, लाइक एक एक्सटेंड तक इम्पोर्टेंट है। आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर आपकी जीपीए अच्छी हो। बट अगर आपकी जीपीए अच्छी नहीं भी है, अगर आप फोकस करें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे, अपनी पर्सनालिटी पे और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, अगर आप उसको बहुत अच्छे से लिखें और अपनी एसओपी स्पेशली उस पर फोकस करें, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे ऐसे अलमनी भी हैं जो कि 2.5 जीपीए जिनकी थी वो भी जा चुके हैं, वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जीपीए मैटर इतना नहीं करता आपकी सिलेक्शन में। अगर आपकी कम भी है तो आप फिर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो एसओपी का होता है। तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन एसओपी होती है। और अक्सर स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें वापस आकर ये सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा या नहीं। तो उनका ये है कि उनको सेमेस्टर रिपीट करना पड़ भी सकता है। उनको पहले अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपका सेमेस्टर एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्रेडिट ऑर्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं आपकी क्रेडिट ऑर्स एक्सेप्ट। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी, और स्पेशली मेडिकल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी। अगर वो क्रेडिट ऑर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, आपको सेमेस्टर रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करते तो फिर आपको डेफिनेटली वापस आके से ये सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। और उसके अलावा ये क्वेश्चन आता होता है कि आप क्या फील्ड ऑफ स्टडी कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो क्या मैं फील्ड ऑफ स्टडी वहाँ पे यूएस के लिए मैं कोई और फील्ड ऑफ स्टडी रख सकती हूँ? तो येस यू कैन। अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये इसीलिए ग्लोबल यू ग्रेड एक्सचेंज अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम को नॉन डिग्री प्रोग्राम भी कहते हैं, कि आप कुछ और भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो हेडिंग टुवर्ड द एप्लीकेशन फॉर्म कि उसको कैसे फिल करना है, उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह एंड कुछ गाइडेंस, उस्मान अगर आप प्लीज़ थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें तो। थैंक यू शीज़रा, आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। तो जो भी जनरल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनको जो है वो भी सही आपने बता दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब तो वैसे भी यूएससीएफपी ने जो है वो थोड़ा सा खर्चा किया है और अपनी नई वेबसाइट भी बनाई है उन लोगों ने। तो उसके बाद फिर आप लोगों को और भी ज़्यादा, वैसे खर्चा तो करते हैं, जब आप जाएंगे खर्चा करेंगे, लेकिन अभी उन लोगों ने पोर्टल पे भी खर्चा कर दिया है। तो सिंपल आप यूएससीएफपी की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। गूगल पे लिखेंगे तो यूएससीएफपी की वेबसाइट पे जाएं, देन स्कॉलरशिप्स में ग्लोबल यू ग्रेड। और पहले आप लोगों को क्या करना है, साइन अप करना है अपनी एप्लीकेशन को। साइन अप का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही, मतलब आपसे आपसे सिर्फ वो सीएनएसी मांगेंगे और आपको ईमेल होगी आपकी, ठीक है। साइन अप कर देंगे, आपको आपको एक ईमेल आ जाएगी, उसमें आपका पासवर्ड होगा। अब वो जब आप पासवर्ड पुट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब एप्लीकेशन जो है वो 5 पोर्शंस पे है। अब इसमें पर्सनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होगा, एकेडमिक होगा, ठीक है। उसके बाद नॉन एकेडमिक पोर्शन या अदर इन्फॉर्मेशन, और देन डॉक्यूमेंट्स की होती है एक, और पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि अभी जो है वो शिजरा और रहमान ने बताया कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी सिलेक्शन में। तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत बेसिक है, मतलब कि आपका नाम होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आपके जो है वो करंट एड्रेस होगा, आपका परमानेंट एड्रेस होगा। अब इसमें करना क्या है आपने, अब करना सिर्फ ये है कि कोई भी बॉक्स आपने खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मिडिल नेम में भी जो है ना वो नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं, तो वो भी नहीं करना। अब आप लोगों ने मिडिल नेम में अगर आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो वो मिडिल नेम का हिस्सा बन जाता है आपका। तो सिर्फ मिडिल नेम में आपने नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखना। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मोस्टली जो हर किसी ऑलमोस्ट स्टूडेंट को इशू कर रहा होता है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में फ़ोन नंबर और एक होता है फैक्स नंबर होगा, वो इशू करेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर अब काफ़ी, जिस तरह मेरी तरह जो हैं काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो विलेज से होते हैं, ठीक है, गांव से होते हैं। गांव में अभी मेरे ख्याल से तो फ़ोन नंबर नहीं आया हुआ, या पीटीसीएल बहुत कम होगा। तो वो सिंपली क्या करें, उधर 051 या 010-00 या फिर 1235456 करके उसको कंप्लीट कर दे। अब ये नहीं है कि अभी मुझे आज एक स्टूडेंट की जो है वो मैसेज आया हुआ था कि उस्मान भाई मैंने क्या किया, मैंने ना वैसे ही लिख दिया किसी का नंबर, तो एप्लीकेशन तो मेरी कंप्लीट हो गई है।
अब क्या होगा, जब आप लोग सिलेक्ट होंगे तो फिर वो वैसे ही किसी को कॉल कर देंगे, वैसे ही फिर आपको पता नहीं चलेगा और वैसे ही फिर आप घर बैठे रहेंगे। तो इसलिए फिर जो प्रोसीजर है उसी को ही फॉलो करें, और ऊपर उन लोगों ने लिखा भी होगा कि आप जो है ये क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इमरजेंसी है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपने सेम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा, उसमें आप लोगों ने अपना सेम फ़ोन नंबर यूज़ नहीं कर सकते आप। अगर आप सेम फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे या सेम कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करेंगे, वही आपका जो है वो अ, परमानेंट एड्रेस का फ़ोन नंबर है या मोबाइल नंबर है, वही आपका करंट एड्रेस का है। और वही अगर आप इमरजेंसी का भी कर देंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए आपको डिफरेंट चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा होता है जो कि डिफरेंट ही होना चाहिए आपका। जो सेकंड पोर्शन है वो आपका एकेडमिक पोर्शन है, ठीक है? एकेडमिक पोर्शन भी बहुत ईज़ी है। अब उसमें आप लोगों को जो है वो अपनी इंटरमीडिएट और अपनी जो बैचलर्स डिग्री है उसका इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अब इसमें जो मेन इश्यू आता है इंटरमीडिएट का। उसमें आपके कॉलेजेस के नाम नहीं होते। सिंपली आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूशन नेम में पाकिस्तानी कॉलेज पुट करें, ठीक है? और देन इंस्टीट्यूशन नेम अदर में जाके अपने जो आपका कॉलेज होगा उसका नाम लिख दें। इसके अलावा इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा ऐसा-वैसा। और एक जो शिज़रा ने अभी बात की थी कि आप अपने एकेडमिक्स के अलावा भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें प्रपोज़्ड फ़ील्ड का लिखा होगा, वो आपने चूज़ करना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि मैं कौन-सी चूज़ करूँ? तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ अपनी रेलेवेंट फ़ील्ड चूज़ करें। देखिए, अब मैं बिज़नेस स्टडीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता होगा कि एमबीबीएस में कौन-कौन से सब्जेक्ट जो हैं पढ़े जाते हैं और कौन से रेलेवेंट होंगे उसके। तो अब मैं किसी को वैसे ही बता दूँ तो वो अच्छी बात भी नहीं है। तो जो आपको लगता है कि मेरे ले रेलेवेंट है और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अब वो ही चूज़ करें। ना ही आपने किसी दूसरे की बात सुननी है, ठीक है? अब हर इंसान का डिफरेंट जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए जो आपका इंटरेस्ट है आपने वही करना है। देन उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है पोर्शन है। उसमें जो सबसे पहला पोर्शन है उसमें आपके पास वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दी है। अभी मुझे किसी ने यूट्यूब पे मेंशन किया हुआ था कि उस्मान भाई मेरा तो जो है वो इसमें वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर माँगा हुआ है और आपने अपनी रिसेंट वीडियो में कहा है कि पासपोर्ट नंबर ही नहीं चाहिए। तो सब एप्लीकेंट से मैं यही कहूँगा, सब एप्लीकेंट से, कि आँखें खोल के ज़रा 4 बार पढ़ें। जो भी कुछ लिखा हुआ है ना 4 बार पढ़ें क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। क्योंकि आप एलुमनाइज़ को वैसे ही तंग कर रहे होते हैं और एलुमनाइज़ अभी मैं देख रहा था फ़ेसबुक पे कोई गालियाँ दे रहा है एलुमनाइज़ को कि आप मेरी क्वेरीज़ को आंसर नहीं कर रहे। तो देखें, हम लोगों के भी पर्सनल चीज़ें हैं और ना ही हमें यूएसएएफपी ने जब से वापस आए हैं, ना ही तो उन लोगों ने कोई ईमेल किया है, सिवाय बर्थडे पे सिर्फ़ एक ईमेल करते हैं, उसके बाद उन लोगों ने कोई अभी तक कोई एक पैसा भी नहीं दिया हमें। हम तो सिर्फ़ आप लोगों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा है वीज़ा इन्फॉर्मेशन। अभी तक जो भी यूएस नहीं गया हुआ या फिर यूएस के गवर्नमेंट जो फंडेड प्रोग्राम्स हैं, उन पे नहीं गया, वो सिंपली नो करें वहाँ पे। नो करके आगे जो है वो है कि अभी तक आप अरेस्ट हुए हैं, वो भी नो कर दें और लास्ट में एक और है तो उसको भी नो कर दें। उसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो भी आई थिंक महानूर बताएगी आपको कि पर्सनल स्टेटमेंट आपने कैसे लिखनी है, और वो बहुत सोच समझ के लिखनी है आप लोगों ने। और उसमें अगर 1-2 चीज़ें जो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि जिस तरह मैं हूँ कि आई एम मोहम्मद उस्मान एंड आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी स्पोर्टिव, आई एम वेरी जॉली। तो ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी है आपने बिल्कुल भी, ठीक है? अब एक ने लिखा हुआ था कि आई एम वेरी फ्रेंडली एंड लव टू मेक फ्रेंड्स। अब ये ऐसा भी कुछ नहीं लिख देना वहाँ पे। अब इसके मज़ीद जो हैं वो आपको महानूर बताएगी। जो लास्ट पोर्शन है आपका वो है ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह और अदर डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। अब मेन इश्यू आ रहा है हर किसी को ट्रांसक्रिप्ट में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यही नहीं पता कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है। अब जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके डीएमसीज़ होते हैं, ठीक है? सिंपल वर्ड में जिसके ऊपर आपके पूरे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उसके साथ ग्रेडिंग आपकी लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, जितने भी सेमेस्टर्स हैं, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी एक मैसेज आता है कि उस्मान भाई यहाँ पे रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप दोबारा जो है वो गूगल करें और मुझे भी बताएँ जाके यूएससीएफपी ने क्या मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑल रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स विद प्रीवियस ऑल ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है? तो जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे अभी एग्ज़ाम हुए हैं, नहीं हुए, तो उसकी भी आप प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं, ठीक है? और जो ओरिजिनल आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको कभी अटैच करवाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उन लोगों को आप लोगों ने बिल्कुल भी अटैच नहीं करवाना है।
ये नहीं कर देना ओरिजिनल को आप जो है ना टेस्ट करवा के बैठ जाएं, वो बाद में फिर इश्यूज क्रिएट होंगे आपके लिए। और ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास अटेस्टेड भी नहीं है, अभी आप पूरी जो है वो एफर्ट करें कि अटेस्टेड हो जाएं, जो आपके पास ओरिजिनल नहीं है, अगर नहीं होती तो आप वो भी अपलोड कर सकती हैं अपने। लेकिन जो भी पुराने जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट होगी वो सारी आपने एक कंबाइंड पीडीएफ में अपलोड करनी है। देन आपको इंटरमीडिएट का जो है वो सनद जिसे हम उर्दू में कहते हैं और डिग्री हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आप लोगों ने जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, इट्स बेटर कि आप लोग पीडीएफ फाइल्स अपलोड करें, क्योंकि यूएससीएफपी ने भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप पीडीएफ फाइल्स ही अपलोड करें। और जो लास्ट है वो है अदर डॉक्यूमेंट्स या अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं हम उसे। अब उसमें आप मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप अपने 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अभी मुझे किसी का जो है वो मैसेज आया हुआ था, मैसेज, उसने अपनी एक पीडीएफ में 40 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हुए थे, मतलब कि एक कंबाइंड पीडीएफ बना दी है 40 डॉक्यूमेंट्स की। तो ये नहीं करना आप लोगों ने यार, वो यूएसए भी परेशान हो जाएगी वहाँ पे बैठे हुए लोग कि यार ये क्या करें पाकिस्तानी हमारे साथ। तो यार मैक्सिमम आप 2 या 3 कर लें, मैक्सिमम 3 आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिट है एक। ठीक है, ठीक है, तो जो आपको तो लगता है जो कि आपको अब लगता है कि काफी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। देखिए, अब ये सारा कुछ जो है वो आपकी लाइफ है। ठीक है, आपने अपने 20 साल गुजारे हैं, आपको पता होगा आपने अहम क्या किया है अपने 20 साल में, आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वही अपलोड करें जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरी जो है वो एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेंट से इम्पोर्टेंट या स्टैंड आउट कर देंगे, तो वो आप लोग अपलोड करें। और उसके बाद जो पोर्शन है वो सबमिट का है, उसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, डेट लिखनी है और सिग्नेचर्स कर देना है कैपिटल में, टाइप करके सिग्नेचर्स करने हैं और देन उसको सबमिट करवा देना है। और जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो भी महानूर बताएगी आप लोगों को। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जो भी किसी को क्वेश्चन हो एप्लीकेशन के मतलब या कुछ भी, तो फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओवर टू यू शेषरा। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले वो लेके फिर हम एसओपी की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है सर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्रेडिट और एक्सेप्ट करती है या नहीं? अब्दुल रहमान। जी, वेल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका सिलेबस जो है ना, यानी कि जो आपका कंटेंट है जो आप वहाँ पढ़ रहे हैं वो मैच करता है। तो मैंने जस्ट बात की थी, अभी मैं गया तो नहीं हूँ, इंशाल्लाह अगस्त में है, तो उससे पहले पहले मतलब प्रोग्राम ऑफिसर से उनसे, तो अगर आपका मैच करता है कंटेंट, यानी कि आपने जो वहाँ पे सिलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो, और जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में है, अगर वो मैच कर रहा है तो देन क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है उस सब्जेक्ट का, यानी कि आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम currently studying in second year and want to pursue the U grade but our result is not announced yet, so how can apply? ये काफी लोगों का मसला है कि उनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो उस्मान, आप बताएंगे इसको। आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होगा। आप ये कर सकते हैं, आप जाएं अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें, जिसे हम होप सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो वो जब आप बनवा लेंगे उसको आपने अटैच करना है अपना रिसेंट जो भी आपके पास जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, डीएमसीज पड़ी हुए हैं, उसके साथ उनकी कंबाइंड आपने जो है वो एक पीडीएफ बनानी है और वो आप लोगों को अपलोड करनी है। कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, आपका जहाँ तक का भी रिजल्ट है वो आपने एप्लीकेशन में जो सीजीपीए मांग रहा है या मार्क्स मांग रहा है, अगर तो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स होंगे, परसेंटेज होगी, तो वो अपलोड करें, वहाँ पे लिखें और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ अटैच कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। सही हो गया। ओके, अब एसओपी की तरफ चलते हैं। महानूर, आप थोड़ा डिटेल में बता दें कि स्टूडेंट्स अपनी एसओपी कैसे राइट कर सकते हैं? Thank you so much, Shizra. Assalamu alaikum everyone. Hope I'm audible to all of you. So आज मैं डिस्कस कर रही हूँ एसओपी। एसओपी समथिंग जो यूग्रेड की सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज़ कही जाए तो एसओपी होती है। मोस्टली अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अभी तक देखा है सारे प्रोसीजर में, 60 to 70% जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एसओपी पे होता है आपका। तो एसओपी समथिंग कि जिसपे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम दो, और जितना उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब एसओपी होती क्या है? एसओपी इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आप बताना आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है, आप कौन हो, आप कैसे हो, आप क्या, आपके इंटरेस्ट क्या, आपकी हॉबीज क्या है, ये डिफरेंट चीजें होती है। एसओपी की बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं।
फर्स्ट कंपोनेंट होता है पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। देयर आर सम स्टूडेंट जिनका बहुत स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड होता है, आप वो लिख सकते हो। या आपकी पर्सनैलिटी, हर बच्चे की एक अलग स्ट्रगल होती है, मेरी कोई और स्ट्रगल होगी, उस्मान की कोई और स्ट्रगल होगी, अब्दुलरहमान की कोई और स्ट्रगल होगी। ये टोटली डिपेंड्स, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। देन सेकंड पैराग्राफ में अपनी हॉबीज और आपके इंटरेस्ट वगैरह हैं वो लिखने हैं। उसमें आप अपने यूनिवर्सिटी में, अगर आप सोसाइटीज में, आप वो लिख सकते हो। आप कोई वॉलंटियर वर्क कर रहे हो, आप वो लिख सकते हो। जो भी आपकी हॉबीज या एक्स्ट्रा टाइम आप करते हो अदर देन एकेडमिक, वो सब कुछ आप मेंशन करोगे। देन थर्ड पैराग्राफ होता है आपके एकेडमिक गोल्स। एकेडमिक गोल्स आपके बहुत रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट न्यूट्रिशन की हूँ और मैं अपना गोल मेंशन कर रही हूँ कि मैं आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, टॉप फैशन डिजाइनर आफ्टर 10 इयर्स। दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक। गोल इस तरह का होना चाहिए जो अचीवेबल होना चाहिए। देन लास्ट पैराग्राफ होता है आप यूग्रेड के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, व्हाई यू वांट टू गो टू यूएसए एंड स्पेसिफिकली फॉर एट यूग्रेड प्रोग्राम। और आप यूग्रेड से वापस आके आप किस तरह अपने कम्युनिटी को, अपने एरिया को बेनिफिट कर सकते हो। ये लास्ट पैराग्राफ होते हैं। बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसके अंदर आपने अपनी पर्सनैलिटी बनाई। जैसे उस्मान ने बात किया है कि ये नहीं लिखना आई एम मोहम्मद उस्मान, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कोई स्ट्रगल है या आप इस स्टेज पे किस तरह है, या आपका कोई ऐसा एक मतलब आपका कोई इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि बहुत मोटिवेटिंग है, अब वो मेंशन कर सकते हो। आप किसी प्रोवर्ब से स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी एज अ स्टोरी उसको लेके चल सकते हो, और मे बी आप सिंपली भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एक चीज जो बच्चे मैंने आज नोट की है एसओपी रिव्यू करते हुए, वो ये चीज है कि बच्चे अपना एरिया मेंशन कर रहे थे कि हम लोग इस एरिया से हैं। बच्चों, आपकी जो एरिया है ना, वो आपके एप्लीकेशन से पता चल जाएगा कि आप कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हो। तो उसमें स्पेसिफिकली ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हो, तो वो बिल्कुल नहीं लिखना। उसके अलावा जो हॉबीज है, इंटरेस्ट है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आपकी जो भी हॉबीज है, आप जो भी काम कर रहे हो, वो सब कुछ आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एकेडमिक गोल्स जैसे मैंने बताया अचीवेबल होने चाहिए। वो एकेडमिक गोल्स का कोई एक बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं बनता। मुझे याद है मेरी एसओपी में एकेडमिक गोल्स वाला जो पोर्शन था वो सिर्फ 2 लाइंस के मेरे एकेडमिक गोल्स थे। लाइक इट इज समथिंग कि आप 10 ईयर्स बाद खुद को कहाँ पे देख रहे हो, वो चीज आपने बतानी होती है। और लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपने बताना होता है कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हो। हर बच्चे के अपने रीजंस होते हैं। कुछ लोग जो है कल्चर पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, कुछ लोग स्टडी पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और अब वापस आके क्या करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी यूग्रेड को किस तरह पाकिस्तान में आके यूज कर रहे हो। ये चीजें होती हैं एसओपी में। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, वो चीज ये है कि एसओपी 250 वर्ड्स की होनी चाहिए। 250 से एक भी वर्ड ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिक 250 वर्ड से एक भी वर्ड ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका कट आउट हो जाएगा। तो 250 से एक भी वर्ड आपका नहीं ज्यादा होना चाहिए। हाँ, 250 से कम हो सकते हैं, लेकिन 250 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम लोग 250 से कम करेंगे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि यार अगर आपको 250 वर्ड्स मिल रहे हैं तो उन 250 वर्ड्स को यूज करो। मतलब उन्होंने कुछ सोच के ये 250 वर्ड्स दिए हैं ना, तो उनको यूज करो। और एक और चीज जो एसओपी में इस पर बहुत ज्यादा चीज आ रही है, वो ये है कि बच्चे जो बातें वो सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वही बातें लिख रहे हैं। जब आप लोग सर्टिफिकेट में कोई एक चीज बता रहे हो तो आपको क्या जरूरत है वो एसओपी में लिखने की। एसओपी को यूज करो, उन 250 वर्ड्स को यूज करो अपने बारे में बताने के लिए, वो चीजें बताने के लिए जिनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आप वो चीजें बताओ ताकि कल को जब आप सिलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू के अंदर आपकी वो चीजों को वो टेस्ट कर सकें। अब मतलब बच्चों ने, जैसे मेरे पास एक एसओपी है उसमें बच्चे ने अपना आईमन का एक सर्टिफिकेट लगाया था और उसने वहीं पे एसओपी में यही बात लिखी थी कि मैंने एमयूएन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो भैया आप वो अपने वर्ड्स जाया कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और 250 वर्ड्स बहुत कीमती वर्ड्स होते हैं, इनको जितना अच्छे से यूटिलाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये मेन चीजें एसओपी के लिए। उसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अलमनाइज को जब एसओपीज भेजते हैं तो एक फाइनल ड्राफ्ट भेजते हैं। एक चीज ड्राफ्ट वाली चीज, एसओपी लिखने का एक मेथड होता है। आप ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनको अपने माइंड में रख के आपके ज़हन में जो भी बातें आ रही हैं वो लिखो। इट डज कितने वर्ड्स हैं, 250 वर्ड के काउंट का भी आप एक साइड पे रखो। वो सारी बातें एक पेपर पे और आप लैपटॉप पे कहीं भी लिख सकते हो। उसको लिख लिया आपने, अब आप उनको दोबारा पढ़ो और देखो कि आपके अंदर कोई चीज, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, या कोई चीज बहुत जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं आप उनको डिलीट कर दो। इससे ये होगा कि आपके वर्ड कम हो जाएगा और आपके एक सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगा। उसको अगेन एंड अगेन रीड करो और जो भी अननेसेसरी चीजें आपको लग रही हैं वो दोबारा कट आउट कर दो। इस तरह ये होता है कि आपका एक थर्ड ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाता है। देन उसको दोबारा रीड करो और आप समहाउ 250 के काउंट तक आ जाते हो। 250, 251, 249 इस काउंट पे आ जाते हो।
और वो रिव्यू के अंदर आपका 250 बैलेंस हो जाता है, लेकिन 250 तक तो एटलीस्ट आओ ना। मैंने जब अपनी एसओपी लिखी थी, मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट 1000 वर्ड्स का था, और देन मैंने उसको रीड अगेन बार बार पढ़ा था और सारी चीज़ें जो अननेसेसरी रिमूव की थी। मेरा सेकंड ड्राफ्ट 630 वर्ड्स का था, और देन मेरा थर्ड ड्राफ्ट जो था, जो मेरी फाइनल एसओपी थी, वो 251 वर्ड्स की थी, जो रिव्यू के बाद 250 वर्ड्स हो गए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्या एक वर्ड है जो एक्स्ट्रा जो रिमूव करना चाहिए। तो इसलिए अपनी एसओपी पहले फर्स्ट ड्राफ्ट से स्टार्ट करो, जितनी भी बातें आपको लग रही हैं लिखनी चाहिए वो सारी लिखो, और देन उसका आहिस्ता तक कट आउट करो। और माई सेल्फ, प्लीज बच्चों, जो बहुत मिस्टेक बच्चे का है वो ये है कि माई सेल्फ ऐसे लिख रहे हैं। माई सेल्फ ऐसे नहीं लिखना, वो आपसे माई सेल्फ नहीं पूछ रहे, वो आपकी एक पूरी पर्सनैलिटी पूछ रहे हैं। आपकी एसओपी वो चीज़ है जो आपकी एक पर्सनैलिटी उन लोगों के सामने डेवलप कर देगी, और जब आप इंटरव्यू के लिए आते हो सिर्फ उस पर्सनैलिटी को टेस्ट कर देते हैं। तो अपनी एसओपी पे जितना फोकस कर सकते हो, जितना प्रिसाइज और कंसाइज होकर लिख सकते हो उतना लिखो, लेकिन उन 4 चीज़ें वो जो पूछ रहे हैं उनके आंसर जरूर दो, और उसमें कोई स्टोरीज नहीं लिखनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड मूव ओवर टू हिजरा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मैट्रिक लेवल की इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए या नहीं। वहाँ पे मैट्रिक का ऑप्शन नहीं है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन में जस्ट इंटरमीडिएट एंड बैचलर्स, जो भी आप अभी फिलहाल डिग्री आपकी चल रही है, उसी के बारे में लिखना है। आपने मैट्रिक के बारे में नहीं लिखना। एंड एक और क्वेश्चन है मैम, यूआस का भी बता दें कि क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करती है या नहीं। ओके, यूआस जो है वो क्रेडिटर्स एक्सेप्ट नहीं करती। यूआस का क्राइटेरिया ये है कि वो आप जब जाना होगा तो आप जब एनओसी बनवाते हो ना, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और फिर वो आप जब वापस आओगे, आप एक जो सेमेस्टर आप जा रहे हो उसका ये सीन है कि आप उसकी फ़ी पे करके जाओगे, मतलब आप एनरोलमेंट करा के फीस पे करके जाओगे, और वापस आके आप नेक्स्ट सेमेस्टर अपना कंटिन्यू करोगे अपनी क्लास के साथ। और जो आपका सेमेस्टर मिस हुआ वो आप समर में समर फी पे करके, और आपको एक लेटर मिलेगा वो अटैच करके अपना समर कर लोगे, तो समर में आप एक कंप्लीट सेमेस्टर कर सकते हो। इट इज समथिंग कि आपको एक एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ी है समर की, और आपका पूरा सेमेस्टर हो जाएगा। यूआस क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब जो एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं उस वो लोग नेक्स्ट ईयर जाएंगे। यस, 2022 के लिए एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं, तो सब नेक्स्ट ईयर ही जाएंगे। उस्मान, आप इसमें थोड़ी डिटेल बता सकते हैं कि स्प्रिंग में जाएंगे या फॉल में? जो अब एक्सपीरियंस है 2020 के लिए, उसमें स्प्रिंग और फॉल। स्प्रिंग जो बैच है वो जनवरी में जाता है, और जो फॉल बैच है वो जाता है अगस्त में। जिस तरह अभी शिजरा और अब्दुलरहमान हैं, इन लोगों का फॉल 21 है, तो ये भी अगस्त में जाएंगे। और जो स्प्रिंग 2022 होगा वो जनवरी में जाएगा, और फॉल 2022 जो है वो अगस्त में जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम एज एन इंजीनियर आपका एक गोल हो सकता है, राइट? आई वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन माय कंट्री। अच्छा, ज्यादातर लोग जो ना यूज कर रहे होते हैं इसको, मतलब वो लिख रहे होते हैं कि हम बैकवर्ड एरिया से हैं, हमारे एरिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है या इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तकरीबन सब ये बात लिख रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा कुछ यूनिक लिखें। प्लस ज्यादातर जितने भी लोगों की मैंने एसओपीज रीड की हैं उनका यही लिखा हुआ होता है कि हम अपने कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, इसी वजह से हम ये हमने स्पेसिफिक फील्ड सेलेक्ट की है। बट आई थिंक आप लोगों को थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मैंने अपनी एसओपी में लिखा था कि मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है। तो अगर आप लोग अपनी फील्ड के अंदर थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए कि आपको कौन सी और फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है या उसकी कौन सी टेक्नोलॉजी आपको ज़्यादा पसंद है, इस वजह से आपने फील्ड सेलेक्ट किया है, तो ये बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब आप उसको यूएस से रिलेट करते हैं तो थोड़ा सा आप उसको कल्चर से हट के अपनी फील्ड से भी रिलेट कर दें तो बेहतर होगा कि आप फील्ड से भी बता दें कि आपकी फील्ड में ये काम हो रहा है, इस वजह से आप थोड़ा पैशनेट हैं यूएस जाने के लिए। Okay, I'm second semester student. Can I apply for this? No. Is GPA important? आप लोगों का क्या ख्याल है, इस GPA important? ओके, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा, जो मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी तक समझ आया ना, वो ये है कि जीपीए समहाउ जीपीए मैटर्स। तो मैंने बहुत कम जीपीए वाले को कभी सिलेक्ट होते नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि जीपीए रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग मेजर रोल एसओपी प्ले करती है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन एंड देन जीपीए। मेरा ये एक रैंकिंग है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपेंड करता है कि अगर आपका एसओपी में आपने ऑब्जेक्टिव
जो है ना उसको एकेडमिकली आपका ऑब्जेक्टिव जरा ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसमें डेफिनेटली मैटर करती है जीपीए। यानी कि अगर आपने अपनी एसओपी में ये मेंशन किया है कि आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है और आपकी कुछ एकेडमिक्स गोल है, रिसर्च में आप जाना चाहते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन अपनी उसमें परस्यू करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली सीजीपीए मैटर करता है। लेकिन अगर आपका जो बैकग्राउंड है कल्चरली या उसके अलावा एकेडमिक से हटके है, एसओपी में आपने मेंशन जो किया, तो देन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। वैसे ओवरऑल ये दो पर्सपेक्टिव हमें मिलते हैं सीजीपीए के हवाले से मेरे ख्याल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश कोई लैंग्वेज कोर्स आपको चाहिए इसके लिए? ये वो क्वेश्चन है जो आई गेस हर अलमनाई ने कोई 10 दफा ये चीज क्लियर की और 10 दफा ही बच्चों ने पूछी है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई कोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, बेसिक इंग्लिश लेवल वो आपका पूछ रहे होते हैं कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप नेटिव लैंग्वेज के अलावा कौन सी एक लैंग्वेज स्पीक कर सकते हो, वो इंग्लिश होती है जो हम लोग शुरू से स्कूलों में बोलते हैं। कोई स्पेसिफिक वहाँ पे उन्होंने मांगा ही नहीं है तो बच्चों क्यों चाहिए ये टेस्ट। हाँ, एक जगह टोफल का होता है, कुछ बच्चों ने पहले दिया होता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि इफ अगर आप लोगों ने दिया हुआ है तो मेंशन करो। कोई स्पेसिफिकली इस यूग्रेड के लिए नहीं चाहिए होता है, जब तक वो आप सेलेक्ट नहीं होते वो उसके बाद खुद वो लेते हैं। ये वो चीज़ है जो बच्चों को 10 बार समझाई जाती है, इंस्ट्रक्शन में लिखा है, फिर बच्चे पूछ रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंडली टेल अस। जी, मैंने पहले कहा था कि जो आपकी एप्लीकेशन होती है आपने 4 बार पढ़ना है। अगर आप 4 बार पढ़ेंगे ना आपके क्वेश्चन भी नहीं बनते फिर दोबारा। इसके आगे सिंपल लिखा हुआ है ऑप्शनल। अब आपको ऑप्शनल का तो मतलब होना चाहिए बिल्कुल कि ऑप्शनल का क्या मतलब होता है। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं यार, हर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल सब लोग जाके उस्मान का यूट्यूब चैनल देखें, उस्मानिस्टिक के नेम से, और उस पर पूरी सीरीज जो कि अपलोड हो चुकी है एसओपी से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड। इवन मैंने खुद वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए कि एप्लीकेशन कैसे फिल आउट करनी है। तो मैं कमेंट सेक्शन में हम एट द एंड उसका लिंक भी दे देंगे यूट्यूब चैनल का, ताकि जिसको कोई भी मसला है तो वहाँ जाके वो एक दफ़ा वीडियोस वगैरह देख ले ताकि उनकी सारी क्यूरीज क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, सब अपनी अपनी एसओपी के बारे में बता दें कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे। तो मैं वो पहले मुझे आई थिंक सो ये वही है। फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि यार जब आप अलुमनाइज को रीच आउट करते हैं तो सब्र भी किया करें। आई थिंक सो ये वही है। इसको मैं ना तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा हूँ, ना मैं इसको इंस्टा पे कर रहा हूँ, और ना इसको मैं जो है वो फेसबुक पे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो यही वही और लड़का। तो यार पहले तो ये है कि आप जो है ना वो कुछ भी नहीं होगा, हम लोग रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और एक और बात कि हम अपनी पर्सनल स्टेटमेंट शेयर नहीं करते, ठीक है। कोई भी अलुमनाई अपनी पर्सनल स्टेटमेंट शेयर नहीं करेगा। और अगर आप लोग कहेंगे कि हमें शेयर कर दें हम, और ये मेरे ख्याल से इसने उसी लिए ही गालियाँ दे रहा था या फिर अलुमनाई को बुरा भला कह रहा था कि इतना तो जो है वो एटॉमिक पावर या एटॉमिक बम के फार्मूले नहीं रखते जितने अलुमनाई पर्सनल स्टेटमेंट रखते हैं अपनी संभाल के। तो इसके पीछे भी यार रीजंस होती हैं। और अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यार ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके कम्युनिटी के रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके एकेडमिक्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब मैं तो ये कहूँगा आप इसको करें, अपना एकेडमिक ऑब्जेक्टिव देकर उसके अंदर कम्युनिटी को शामिल करें, रिलेट करना है आपने बेसिकली अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को, ठीक है। अब जिसका मैं था, मैं फाइनेंस का था, मैंने अपने फाइनेंस का एक ऑब्जेक्टिव दिया एकेडमिक, उसके साथ मैंने फिर उसको रिलेट करके जब मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँगा तो मैं वापस पाकिस्तान आके फाइनेंस की फील्ड में कम्युनिटी को कैसे सर्व करूँगा। तो अगर आप इस तरह रिलेट करेंगे चीज़ों को तो वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट एक अच्छी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन इज यूनिक थिंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर एसओपी। ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब सॉरी टू से ये बहुत डम क्वेश्चन है। भाई वो आपको, आप अगर एक आम इंसान जैसे होगे तो आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे। वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं यूनिक होते हैं, जिनमें कोई स्पेसिफिक स्पार्क होता है किसी चीज को करने का या यूएस से वापस आके सर्व करने का। अगर आपके अंदर वो स्पार्क और यूनिकनेस नहीं होगी तो वाई दे विल सिलेक्ट यू। जब उनके पास 18 to 20% एप्लीकेशन आ रही हैं, वो एक जनरल बच्चे को क्यों सिलेक्ट करेंगे।
तो यूनिकनेस, और वैसे मैं ये कहती हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर पर्सन अपने अंदर एक यूनिक, उसके अंदर एक स्पेसिफिक यूनिकनेस होती है, आपको सिर्फ उसको हाईलाइट करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो किस तरह बता रहे हो कि आप कितने यूनिक हो, या आपके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो आप जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है। तो ये तो मतलब यूनिकनेस से हर बंदा यूनिक होता है, बस आपको उसको लिखना है और बताना है कि आप किस तरह यूनिक हो। सही हो गया। अच्छा, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट संदीप का क्वेश्चन है कि अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? उस्मान, आप बता दें थोड़ा सा कि हम वहां जाते हैं तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलुमनाई से हमें आंसर कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी पूछते होते हैं कि बेनिफिट, जितना ये क्वेश्चन है कि बेनिफिट हमें क्या होगा वहाँ पे जाके। इवन मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, अभी मुझे ना किसी का मैसेज आया हुआ था कि उस्मान भाई मैं ना एहसास स्कॉलरशिप भी जो है वो पाकिस्तान में दे रहा हूँ, तो जब मैं यूएस चला जाऊँगा तो मेरी एहसास स्कॉलरशिप ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? तो सिंपल मैंने इसे यही जवाब दिया कि अभी आप वेट करें, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फिर इंसान को फिर पता चलता है कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं, और फिर आपके लिए एहसास या आपके लिए एचएससी की स्कॉलरशिप भी मैटर नहीं करेगी। आप लोग जैसे ही इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, अब जिस तरह शिल्पा और रहमान जो है वो भी सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन इनकी स्कॉलरशिप जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। उन लोगों ने टोफल दिया होगा, कोई फीस नहीं है उसकी, ठीक है। वीज़ा के लिए जाएंगे आप लोग, वीज़ा की भी कोई फीस नहीं होगी, वीज़ा कोर्स कोई नहीं है, ठीक है। इवन के जब आप इस्लामाबाद जाएंगे वीज़ा के लिए तो आपको ट्रैवलिंग रीइंबर्समेंट होती है। अब मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, मैंने टैक्स पढ़ी हुई थी, तो टैक्स में मैंने बड़े ट्रैवलिंग रीइंबर्समेंट की थी, बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन जब मैं यूएससीएफपी के पास गया तो मुझे रियल में जो है वो तब पहली बार ट्रैवलिंग रिइंबर्समेंट मिली थी। तो वो जो फिर शशका होता है उस टाइम, इवन अगर आप यूएस एम्बेसी जा रहे हो, हर कोई लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, और आप आराम से बैठे होते हैं गाड़ी में, आपके वो सारे सीएनएसी लेके जा रहे हैं, आपकी जो है वो टिकट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं आराम से, आपको आगे टिकट्स देते हैं, आप पहुंच जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर भी सब देख रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे आए हुए हैं सारे, ठीक है, और इनके लिए अलग ही प्रोटोकॉल है। तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, ठीक है। आप काफ़ी एलुमनाइज होते हैं वो घूम के आते हैं, काफ़ी होते हैं जो फ्लोरिडा भी नहीं जाते, जो जो कैलिफोर्निया भी नहीं जाते, काफ़ी एलुमनाइज होते हैं, काफ़ी होते हैं जो काफी घूम लोग के। मिशिगन भी नहीं आते। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आप, और आपकी मतलब कि ये कहूँगा कि आपकी जो एयर टिकट्स होती हैं सारी पेड होती हैं, आपकी जो भी ऑफिशियल टूर्स होते हैं ये आयरेक्स की तरफ से सारे पेड होते हैं, आपकी होटलिंग जो आयरेक्स की तरफ से होती है वो सारी पेड होती है। आप ये समझ लें, अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछे थे अभी मुझे कि मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो यूएस फैमिलीज़ के साथ रहते हैं जाके, तो खतरा तो नहीं है, वो हमें कुछ कह तो नहीं रहे। तो उसका सिंपल सा एक ही जवाब है कि जो यूएस वाले लोग हैं ना हमसे ज़्यादा इंसान हैं, ठीक है, वो आप लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते, वो आप लोगों की इतनी कदर करते हैं, इतनी कदर करते हैं, पाकिस्तान में इतनी कदर नहीं होती, जो सिंपल बात है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। आप इस तरह समझ लें जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट है, आप वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स होते हो, आपकी तरफ को आपको कुछ भी कोई नहीं कह सकता, आप आराम से घूम रहे होते हो, ठीक है। हर कोई पूछ रहा होता है यार कहाँ से हो, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो आराम से आप कह सकते हो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो पे कर रहा है, और वो फिर देख रहे होते हैं कि यार ये क्या जो है ना टॉप चीज़ें आई हुई हैं, वो इसी तरह ही कहते हैं हमें तो स्टेट डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं देता, आप लोगों को इतना पैसा दे रहा है। तो हर एक चीज़ पेड होती है, आपकी अकोमोडेशन पेड है, फ्लाइट पेड है, खाना पेड है, आपको खाना नहीं मिल रहा आप कह सकते हैं, आप ईमेल करें एडवाइजर्स को, मुझे खाना नहीं दिया आज, मुझे पैसे भेजो, वो आपके पैसे भेजेंगे, ठीक है। अब ये तो बात की बातें, जब आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर दूर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इस तरह जो पैसे निकलवाने पाकिस्तानी हैं तो बाहर नहीं आते, तो वहाँ जाके भी फिर जो है डिफरेंट वेज होते हैं पैसे निकलवाने के उनसे, तो वो हम लाजमी हमने भी किए हैं, और डिफरेंट हर कोई करता है वहाँ पे जाके। तो बिल्कुल इसके लिए यार हम एक अलग से सेशन रख लेंगे अभी। वो बाद में वो सिर्फ इनपुट होता है ना जो कि शॉर्ट लिस्ट या सेलेक्ट हो गए होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगी कि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन मतलब अप्लाई नहीं करते जस्ट इस वजह से कि उनकी यूनिवर्सिटी क्रेडिटर्स एक्सेप्ट नहीं करी, या फिर अक्सर स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन के लिए ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ओके, इसका मैं आंसर देना चाहूँगी। ये चीज़ मेरे माइंड में भी आई थी
जब मैंने किया था तो मेरे टाइम पे मुझे पता था मेरी यूनिवर्सिटी क्रेडिटर्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, और क्योंकि मेरी ऑलरेडी डिग्री 5 इयर्स की थी तो मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा चीज़ थी कि मैं तो एक पहले 5 साल की डिग्री करने में एक और साल जब पीछे हो जाऊंगी तो ये बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए ना, कि मैं 6 साल की मेरी डिग्री हो जाएगी। तो बच्चों, पहली बात, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देती हैं, नहीं भी करती है तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। आप इतना कुछ सीखते हो जो आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के 4 to 5 ईयर्स में नहीं ना सीखते, वो आप लोग इस 6 मंथ्स में सीख लेते हो। आपके नाम के साथ लग जाता है कि आप एक यूग्रेट अलमनाई हो। ये इतना बड़ा ऑनर होता है, इतना बड़ा प्राउड होता है ना, कि आप कहीं भी जाओगे जब कोई कहेगा ना कौन है तो कहोगे ना यूग्रेट अलमनाई, तो इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी तक वो फील करती हूँ। ये बहुत आपको इतना कुछ, आपका मतलब सोचने का अंदाज, आपको चीज़ों को देखने का अंदाज टोटली डिफरेंट हो जाता है। आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव पे सोचते हो, मतलब आपका सोचने का अंदाज और आपका एक फ्रेंड जो कभी यूग्रेट पे नहीं गया उससे कभी आप बैठ के बात करोगे ना, अब दोनों के बात करने के अंदाज में डिफरेंस आएगा। उसके अलावा आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप बात देखो, आपकी सीवी है, आपके साथ 2 और बच्चे बैठे हैं, उनकी सीवी में सिर्फ पाकिस्तानी एजुकेशन है, लेकिन जब आपकी सीवी उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये यूएसए से एक सेमेस्टर करके, तो ऑब्वियस बात आपकी सीवी स्ट्रांग होगी। तो अगर कहीं ना कहीं आपकी डिग्री एक साल पीछे रहे तो वो आपको आके फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देगी। उसके अलावा ये है कि आपका इतना का आपको चीज़ों को पता चल जाता है कि आप फ्यूचर में ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के लिए और इन चीज़ों के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो मैं तो ज़रूर इनकरेज करती हूँ बच्चों को कि अगर रिस्क लेना भी पा रहे हैं तो ले लो, क्रेडिटर्स नहीं ट्रांसफर हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। मैंने अभी रिसेंटली एक बच्ची की काउंसलिंग किया, वो छोड़ना चाह रही थी, लाइक शी वाज सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बोल रही थी कि मेरा 1 साल ज़ाया हो रहा है। तो मैंने उसको समझाया था कि ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाली नहीं है, लोग तरसते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप खुद सोचो, 18 to 19,000 एप्लीकेंट्स के अंदर से 210 स्टूडेंट सेलेक्ट होना इज समथिंग, कि आप कुछ हो तो आप सिलेक्ट हो रही हो ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। ग्रेट, यस। एक्चुअली मैं भी पहले सोच रही थी कि शायद मैं छोड़ दूं, बिकॉज पोजीशंस और इन चीज़ों का मसला होता है, लेकिन मेरी भी काउंसलिंग वगैरह महानूर ने ही की थी, क्योंकि इंटरव्यू सेशन से लेकर अब तक उन्होंने मुझे गाइड किया है। ओके, थैंक सेम यू सो क्वेश्चन मच का आप लोगों ने आंसर आज। मैं देना चाहूँगा हाँ कि जी जी जी। मैंने बात की थी, सेम सेम क्यूरी जो है इसको मुझे भी फेस करना पड़ा। तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि यू कांट ईट योर केक एंड हैव इट, मतलब आप ये भी नहीं कर सकते कि आपके पास केक भी हो और आप खा भी लें और आप कहीं खत्म भी ना हो। तो आपको जो है ना, वो हम कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि बहुत कुछ पाने के लिए फिर थोड़ा बहुत या बहुत कुछ तो खोना पड़ ही जाता है। तो बिल्कुल। कोई मैटर नहीं है अगर आप, फॉर एग्जांपल, इफ यू गोना बी गोल्ड मेडलिस्ट, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट बनने जा रहे हैं, आपको 4x4 CGPA है और एक तरफ आपको यू ग्रेड का मिल रहा है, तो इन केस अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट बन भी गए तो जस्ट आपको आपके सीवी में, आपके इंटरव्यू में 5 to 10 मार्क्स एडिशनल मिल सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो स्किल आपको, आपका पर्सनल स्किल जो पॉलिश होगा ना यू ग्रेड में, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा फ्रूटफुल और इफेक्टिव होगा विद रिस्पेक्टिव टू 5 to 10 मार्क्स। यस। ओके, अच्छा, एट द एंड मैं ये बात जरूर बोलना अभी चाहूँगी। Yes. जी जी उस्मान बोलिए। एक एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप लोग अभी जिस तरह कह रहे थे कि फेस करना पड़ेगा, तो मैं तो ऑलरेडी फेस कर चुका। मेरा मतलब मेरी डिग्री 1 साल लेट हुई है, ठीक है। उस टाइम मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, देन मैं यूएस चला गया, मेरे 1 साल थे, अभी तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ। मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी 4 इयर्स डिग्री थी, लेकिन मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ। और मेरे इश्यूज बढ़ते, मतलब ये इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं प्रेफर यूग्रेड को करता हूँ हमेशा। अभी जिस तरह रहमान बात कर रहा था गोल्ड मेडल की, तो मैं ये कहूँगा, देखें पाकिस्तान में कितने ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। हर यूनिवर्सिटी बिल्कुल, है उसमें डेफिनेटली। से कोई मेरे ख्याल से 200-300 बंदा तो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। और आप उधर से यूग्रेडियंस निकाल लें, आपको या मर मरा के कोई 5 या 6 यूग्रेडियंस मिलेंगे उस यूनिवर्सिटी से। तो आप जितने मर्जी गोल्ड मेडल ले लें, जो आपका एक्सपोजर होता है हमेशा वो काउंट होता है। यूएस में जाके जो आप नई चीज़ें सीख के आते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो एलुमनाई नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा है, आपको कहीं भी दुनिया में आप चले जाएं, आप अगर मेंशन करेंगे कि यूग्रेड का कोई एलुमनाई यहाँ पे है, आपको पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे बैठे हुआ लाजमी मिलेगा। और वो सारे अच्छे होते हैं, हमारी तरह अच्छे होते हैं, वो हेल्प करते हैं। ग्रेट। थैंक ओके, यू। आप लोग एंड में कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे?
मैं यही एसओपी कहना के चाहूँ हवाले से जी जी प्लीज, यस प्लीज। Yes, मैं ma'am. यही कहना चाहूंगी कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। लाइक ये एक वैसी अपॉर्चुनिटी है जो मतलब मैं कहती हूँ एज ए पाकिस्तानी हम लोग बोल रखे हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने और इतने अच्छे तरीके से मिली है। उस्मान वाली बात कि हम लोग बहुत ऐश करते हैं, लोग रश करते हैं कि यार तुम लोगों के ऊपर इतना पैसा वो इन्वेस्ट करें। हमारे साथ बाकी भी यू ग्रेडियंट्स थे, लाइक डिफरेंट कंट्रीज थे, उनको इस तरह बेनिफिट्स नहीं थे जिस तरह हमें थे। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपके सारी लाइफ आपके साथ है। कि जैसे उस्मान ने बात की कि अलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लाइफ टाइम आपके साथ एक चीज चलती रहेगी। वही बात कि गोल्ड मेडल कहीं ना कहीं रह जाएगा, सिर्फ आपके सीवी के अंदर एक लिखा जाएगा। ये यूग्रेड का एक्सपीरियंस होगा जो आप लाइफ टाइम अपने साथ लेके चलोगे। तो आई विल हाईली एनकरेज ईच एंड एवरीवन के अप्लाई करो। इस साल नहीं सेलेक्ट होते, नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई करो अगर एलिजिबल है, लेकिन अप्लाई जरूर करो। ये आपका अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के अंदर ही आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको पता चल जाएगा एज अ पर्सन आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो, आपके अंदर कौन सी कमियां है वो दूर करने की जरूरत है, और कौन सी चीजें जिनको सही करने की जरूरत है। तो आई विल से कि जरूर अप्लाई करो, हर सूरत अप्लाई करो। Okay, Abdurrahman. यस, वेरी वेल एक्सप्लेन। मैं यही कहना चाह रहा था, जो कि बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया कि यूएस का जो एक्सपोजर है उसका, ये जो यूएससीएफपी की ये जो पूरा पोर्टल एक तैयार किया गया है, अगर आप इस पे ही वर्कआउट करते हैं तो इसमें स्पेशली जो एसओपी का पोर्शन है, ये आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अपने यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें जो है ना आप डिस्कवर करते हैं, अपने आप को जानने का कुछ मौका मिलता है। मतलब ज़िंदगी में हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें अपने आप को देखने का, सोचने का वक्त नहीं मिलता। तो ये एसओपी आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा डिस्कवर करें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या थे, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। What you are and what you will be. तो that is very I believe that it's very special कि आपको अपने आप को थोड़ा सा जानने का मौका मिले। सिलेक्शन होती Yes. है नहीं होती, लेकिन ये चीज़ जो आपको मिलती है इस प्लेटफॉर्म से, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए लाइफ टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आगे आपको एमएस करना है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको जब अपनी पर्सनल स्किल्स का, अपनी पॉजिटिविटीज का, अपनी एनर्जी का, पोटेंशियल का पता होता है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हर जो है एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। Okay, उस्मान, आप कुछ कहना चाहेंगे at the end? एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यार अप्लाई करो आप लोग, सब लोग, ठीक है। और डिफरेंट एक्सक्यूजेस मत बनाओ, मतलब कि मेरा एक साल ज़ाया हो जाएगा या फिर इस तरह हो जाएगा। ये सिर्फ आपको जो है अप्लाई करने के दौरान हर्डल्स होती है ये चीज़ें। अभी के लिए आपने कुछ भी नहीं सोचना। अभी जो आपका टारगेट है वो सिर्फ है कि मैंने अप्लाई करना है, ठीक है, और मैंने शॉर्ट लिस्ट होना है। अब ये भी नहीं पूछना कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट ऐड होगी कोशिश में कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद की होती हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ फोकस करना है आपकी एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप किस तरह अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को बेटर से बेटर लिख सकते हो, इस पे आपने जो है फोकस करना है। और पर्सनल स्टेटमेंट में एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपने ये नहीं लिखना कि मैं ऐसा हूँ या ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर हर कोई लिख देता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई एम दिस एंड आई एम दिस, आई वॉज लीडर एंड आई वॉज दिस। आप ये बताएं आपने सीखा क्या है, आप ये क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। हर कोई लिख देता है ये बातें कि मैं यूएस में जाके एजुकेशन सिस्टम देखूंगा उनका, ठीक है। मोस्टली 80% यही लिख रहे हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम देखूंगा, ठीक है, उनके प्रोफेसर से मिलूंगा, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर से मिलूंगा। तो ना ही तो वर्ल्ड क्लास जाके मिलेंगे आपको, ना ही आप लोगों ने ऐसा सोचना है, ठीक है। और मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अभी के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी यार, मतलब ये हर कोई, अभी जितने भी मैं देख रहा हूँ ना, हर किसी ने ये लिखा हुआ है। या फिर आप इतना भीख नहीं मांगना, एक बात ये मैं हमेशा कहता हूँ, भीख नहीं मांगना आपने, आपने स्कॉलरशिप खींचनी है। स्कॉलरशिप इस तरह नहीं कहना कि यार मैं जो हूँ ना, जिसमें पाकिस्तान में होती है मुझे पता है, एचएससी में जिस तरह एचएससी स्कॉलरशिप होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उसमें जो जितना ज़्यादा भीख मांगता है वो उतना जो है उसको लग जाती है। लेकिन इसमें आपने भीख नहीं मांगना, एक चीज़ ये ध्यान में रखें, जो जितनी ज़्यादा अच्छी पर्सन स्टेटमेंट में लिखेगा, और हर चीज़, हर इंसान जो है वो यूनिक है, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर किसी की स्ट्रगलिंग डिफरेंट है, हर किसी का जो है मेजर डिफरेंट है। अब आपने उसको वर्ड्स में लेके आना, अब आप कितना वर्ड्स में उसको लेके आ सकते हैं, ये बाप का कमाल है।
तो बस यही कहूँगा। और यार मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी जाके देखें आप लोग, और अभी शिज़ा जो है वो मेंशन भी कर देगी। इसमें लिंक भी और मेंशन मैं कर ये देती कहना हूँ। चाहूँगा कि ना सिर्फ आपको उस्मान के चैनल पे गाइडेंस मिलेगी, बल्कि यू ग्रेड में जाके जो आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं उसका प्रैक्टिकल आपको जो है ना एक्सपोजर इन अ फॉर्म ऑफ वीडियोस मिल सकता है। तो जरूर सब्सक्राइब करें, उस्मान के चैनल पे जाएं, देखें। और आप अभी वर्चुअली, क्योंकि अब आजकल सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, तो ऑनलाइन यू ग्रेड को एंजॉय करने का बड़ा अच्छा मौका है। आप लोग डिफरेंट लकी हो कि आपको मेरे चैनल के आप थ्रू लोग लकी होगे आप कि नेगला उस्मान के फॉल चैनल से आप लोग लकी होगे कि उस्मान के चैनल से वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो कुछ लोगों को तो उनकी पिक्चर्स भी नहीं मिलती। अब मैं ओके, ये कह रहा अच्छा था कि आप लोग डिफरेंट लास्ट स्टेट ढूंढ सकते भी होगा। जी और बात लास्ट में यही है कि आप लोग जो हैं अभी सिर्फ अप्लाई करें, कुछ डेज रह गए हैं, ठीक है। जो भी एक्सक्यूजेज है ना वो निकाल दें, मतलब कि मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मेरा ये हो रहा है या मेरा वो हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ समझें कि बस यू ग्रेड है, और जब तक आप यू ग्रेड को पैशन नहीं लेके आएंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते यू ग्रेड के लिए। यू ग्रेड को समझेंगे कि ये मेरा पैशन है, तो तब जाके जो है वो फिर आपको यू ग्रेड मिलेगा। तो फिर वर्कआउट जब तक नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। जी शिजरा। एट द एंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाह रही हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनके फ्लायर पे क्लियरली मेंशन है कि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या उससे ऊपर है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनरोल्ड हैं और आप 14th या 15th ईयर ऑफ एजुकेशन में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक उन्होंने यूनिवर्सिटीज के नेम नहीं दिए हुए कि आपने इसमें अप्लाई करना है या इसमें है तो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और एट द एंड में बस ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जो स्पेसिफिकली केफ्यूट की यूनिवर्सिटी है, बच्चे बहुत टैलेंटेड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो एक चीज़ होती है वो है रिसोर्सेज की कमी। अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और इनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी हैं जो इसको अचीव कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब अप्लाई करें, इसके लिए लाजमी करें, एक चांस देना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा। अप्लाई करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कुछ भी आपको स्पेशल नहीं करना पड़ा इसके लिए, जिस SOP लिखनी है आपने तो ज़रूर अप्लाई करें। और आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हों। तो आई थिंक अब हमें सेशन एंड करना चाहिए, काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है। थैंक यू सो मच महानूर, उस्मान एंड अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, तो आप लोग सब जाके वहाँ पे सारी सीरीज पड़ी हुई है यू ग्रेड के ऊपर, तो उस्मान का चैनल जाके देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।